کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری پھیلے، جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد فی الارض پھیلے، اس کو اس ایوان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا مت ہو اور اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ علی محمد خان نے محسن داور اور علی وزیر کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جو پاکستان کو نہیں مانتا اسے یہاں رہنے کا حق نہیں۔ قومی اسمبلی میں گھن گرج، اپوزیشن کا سخت احتجاج، ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ بلاول بھٹو کے بغیر مائک بولنے کی کوشش، ایم کیو ایم کا کرارا جواب، کراچی کو پانی دو، پلے کارڈ دکھا دیا۔ علی وزیر صاحب اور محسن داور صاحب ان کا پروڈکشن آرڈرز دے، لیکن آج نیشنل اسمبلی میں ہم سے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان کو یہ خط نہیں ملا۔ یہ سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتے ہیں، یہ سلیکٹڈ جوڈیشری چاہتے ہیں۔ بلاول نے محسن اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سلیکٹڈ اپوزیشن اور سلیکٹڈ ججز چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، حکومت عدلیہ کی ٹارگٹ کلنگ پر اتر آئی ہے۔ شاہد خاقان کی گھنگرج، ججز کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے مستقبل کو، معیشت کو داؤ پہ لگایا گیا، اداروں کی تباہی کی گئی، وہ آج کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ ان کے نظر میں صرف ان کے اپنے لیڈرز ہیں جن کو انہوں نے بچانا ہے، یہ عوام کی بھلائی نہیں چاہتے۔ ادارے تباہ کرنے والے آج ٹھیکیدار بن کر کھڑے ہو گئے۔ سینیٹر شبلی فراز کا جواب، ججز تعداد بل مسترد ہونے پر برہم، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا تھا، اپوزیشن صرف اپنے کرپٹ لیڈرز کو بچانا چاہتی ہے، عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ بھی بیٹھک، دو طرفہ تعلقات اور امن و امان پر گفتگو۔ افغان امن عمل میں کردار ادا کرتے رہیں گے، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ آج OIC اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ نیب نے خواجہ برادران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ سعد رفیق نے پیراگن سٹی سے 5 کروڑ 80 لاکھ کے فوائد حاصل کیے۔ سلمان رفیق نے 3 کروڑ 90 لاکھ کے مالی فوائد سمیٹے۔ ریفرنس کا متن ندیم ضیاء، عمر ضیاء اور فرحان علی بھی نامزد ہیں۔ چیئرمین FBR نے ٹیکس نظام معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ نظام آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار نہیں، وزیر اعظم کو خط لکھ ڈالا۔ GDP کے 10% سے بھی کم ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، صرف 1% لوگ ریاست کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ غصے نے عقل چھین لی، ساہیوال کے گاؤں 142 9L میں شوہر کی فائرنگ، بیوی اور بچے کو قتل کر دیا۔ 3 سالہ بیٹی نے بھاگ کر جان بچائی، ملزم نے خود کو بھی گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جائیداد کے تنازع پر شوہر جلاد بن گیا، ریہاڑی کے موزہ باقر شاہ میں بیوی پر تشدد کیا، مار پیٹ کے بعد بال کاٹ دیے، پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی، شمشاد بیوی کی فریاد۔ ٹھٹا میں PIA کے تربیتی فوکر جہاز میں فنی خرابی، کیٹی بندر کے قریب ہنگامی لینڈنگ، دونوں پائلٹ محفوظ رہے، انجن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، حکام کا مؤخر۔ قومی ایئر لائنز کی پاکستان سے جاپان کے لیے سروس بحال، 3.5 ماہ بعد پہلی پرواز ٹوکیو پہنچنے پر شاندار استقبال، پرواز آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچی، فلائٹ کی مستقل بحالی کے لیے پاکستانی کمیونٹی تعاون کرے، کنٹری مینیجر کی اپیل۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ملک بھر میں یوم القدس منایا گیا، کراچی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک، اسرائیل کے خلاف نعرے، پرچم بھی جلایا گیا۔ سکھر اور لاڑکانہ میں گرمی لڑ گئی، درجہ حرارت 49 ڈگری تک جا پہنچا، گلیاں سڑکیں سنسان، روزہ دار افراد گھروں باغیچوں میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ کراچی میں پارہ 35 مگر اثر 40 کا تھا، لاہور میں بھی سورج آگ برساتا رہا، مزید گرمی کی پیشگوئی نے ہوش اڑا دیے۔
रक्तोडेरो में HIV के मजीद 5 केसेस, तादाद 733 हो गई। आलमी इदारा सेहत की टीम की आमद, लेबॉर्ट्री समेत मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स का मुआयना, माहिरीन वायरस फैलने की वजूहात का तयन करेंगे। ईद उल फितर पर कैदियों की सजा में 45 से 90 दिन कमी का ऐलान। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने समरी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने सजा में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ईद की तैयारियों में रफ्तार पकड़ ली, खवातीन ने मलबूसात खरीद लिया, मैचिंग की बारी। दुपट्टों की तलाश और पीको कराना भी लाजमी। पेशावरी चप्पल भी सेलिब्रिटीज के नाम पर बिकने लगी। कप्तान और जरदारी के बाद जरन सैमी चप्पल भी आ गई। अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, पीछे पीछे मौत है तेरे, आगे आगे तू, अल्लाह अल्लाह। आज न्यूज की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बाराने रहमत अवाम के दिलों में घर कर गई। अफ्तार ट्रांसमिशन ने हलाल और हराम कमाई पर गुफ्तगू, रीमा की दिलकश मेज़बानी। चेक पोस्ट हमले से मुतालिक खड़कमर वाक़े में 13 शहरी जाँ बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। वाक़े में एक जवान भी शहीद हुआ जबकि 7 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने केपीके हुकूमत को रिपोर्ट इरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 मई को MNAs 300 अफराद के हमरा चेक पोस्ट पहुंचे थे। अली वजीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। PTM के 2 रुकने असेंबली ने हमला करने वालों की रहबरी की, जबकि MNAs के साथ मुसल्लह अफराद ने चेक पोस्ट पर गोलियां चलाई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तसर दौरानिये के लिए जवाबी फायर किया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में अली वजीर और मोहसिन दावड़ की रुकनियत मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। उनके इस मुतालबे पर अपोजिशन सीख पा हो गई। रुकने असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग लिए। हंगामाराई बढ़ी तो स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। जो पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे उनकी जड़ें काट के रख देंगे। जिनके जलसे में पाकिस्तान के झंडे को आने तक नहीं दिया जाता, उनसे ये सवाल तो करें। उस शख्स से, इस असेंबली के इस मेंबर से मेरी दरख्वास्त है, ये सवाल तो करें, तुम्हारे झंडों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ बात क्यों की जाती है? सवाल ये है कि इस पे सियासत करेंगे या पाकिस्तान को बचाएंगे? मुझे कोई इस बात का जवाब देना पसंद करेगा? तुम्हारी एक हरकत की वजह से बेगुनाह लाशें गिरी, उससे सवाल किया जाना चाहिए। वो जवाब दे रहा है, गौर से सुने उसका जवाब। उस पर सवाल होना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद फिल अर्ज़ फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उससे पूछा जाए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसे किसी आदमी के लिए रहने की कोई गुंजाइश नहीं जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के झंडे को, दो कौमी नजरिए को नहीं मानता। आराम से अपनी अपनी निशस्तों पे बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ गुथम गुथा मत हो और अपनी अपनी निशस्तों पे बैठ जाएं। जुमा 24 मई 2019 को तलब करदा कौमी असम्बली का इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर वज़ीर हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। अपोजिशन को अंदर बात करने का मौका ना मिला तो रहनुमाओं ने बाहर दिल की भड़ास निकाली। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत सिलेक्टेड अपोजिशन और सिलेक्टेड जजेस चाहती है। जिस खुफिया तरीके से जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, हुकूमत की नीयत का पता चल गया। कल अली वजीर और मोहसिन दावर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए खत लिखा। आज हमसे झूठ कहा गया कि कोई खत नहीं मिला। उन्होंने हुकूमत की मुशर्रफ की बाक़ियात करार दे दिया। ये सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहते हैं, ये सिलेक्टेड जुडिशरी चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्टेबल जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करते हैं, ये इनका नीयत आपको दिखाता है। ये मुशर्रफ के बाक़ियात मुशर्रफ का रवैया अपना रहे हैं। मैंने खत भेजा कि अली वजीर साहब MNA साउथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब MNA वजीरिस्तान से हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे। लेकिन आज नेशनल असेंबली में हमसे झूठ बोला और कहा कि उनको ये
खत नहीं मिला। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत अदलिया की टारगेट किलिंग पर उतर आई है। अदलिया पर हमले सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि जज हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला न दे पाएं। आज पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर हमला है। आज जजेस पर रेफरेंस फाइल किए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, हाई कोर्ट के जजेस पर, और हालत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जज सदर को खत लिख रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपने क्या रेफरेंस मेरे खिलाफ फाइल। कौमी असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास होना था, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आज वहाँ से राय फरार इख्तियार। हुकूमत की जो अदलिया की के खिलाफ बदनीयती है, जो अदलिया पर उसके हमले हैं, सिर्फ इसलिए कि जज आज़ाद फैसले ना दे पाए, जज हुकूमत के खिलाफ फैसले ना दे पाए, जजों को दबाया जाए, इसकी बदतरीन मिसाल इस हुकूमत ने कायम की है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह मुज़ामत भी करेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस पर अपोजिशन सेनेट में करारदाद ले आई। राजा ज़फ़रुल हक ने करारदाद पेश की जिसमें जजेस से इजहार यकजहती और रेफरेंसेस पर तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई, जिस पर हुकूमती अरकान ने शदीद एहतजाज किया। These references are a direct attack on the independence of judiciary. This House expresses solidarity with honorable judges under siege, lawyers, elected representatives and bar councils of the country. This House calls upon the government to withdraw the references against them. No, put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed. Resolution हो गया जी पास, अब तशरीफ रखिए जी। जिस मामले का फैसला अदलिया ने खुद करना है वो अदलिया पर हमला कैसे तस्वुर हो सकता है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन को करारा जवाब। कहा आईनी मामले को सियासत की नजर करना बदकिस्मती है। अपोजिशन ऐवान में अपना हकीकी पार्लिमानी किरदार अदा करे। पार्लिमान कुश्ती का अखाड़ा नहीं, मुअज़्ज़िज़ ऐवान है। अवाम के टैक्स के पैसों से होने वाले पार्लिमानी इजलास को खानदानों की करप्शन के दिफा के लिए ढाल ना बनना चाहिए। उन्होंने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम सफदर का वजीर आज़म से मुताल्लिक नाशाइस्ता लबो लहजा उनकी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। इन्हें खौफ है कि इमरान खान की कामयाबी से सियासी जमात की आड़ में इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खसारे में होगी। उधर काफिले के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हुकूमत गिरे, क्योंकि हुकूमत गिरी तो सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ही का होगा। दोनों जमातें बस एहतिसाब से बचना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नाज बलोच ने कहा कि हम एहतजाज का हक रखते हैं, हमारे वर्कर्स तैयार हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट यही है कि हुकूमत ना गिरे। सबसे मेजर पार्टनर जो है हुकूमत में वो पीपल्स पार्टी है। सिंध के अंदर उनकी फुल फ्लैज हुकूमत है। नुकसान उठाने वाले होंगे वो पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि उनकी सेनेट में भी आपको पता है कि बर्तरी है। ये सारा मामला जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ये दोनों जमातें मुत्तफिक है, वो ये है कि प्रेशराइज किया जाए और किसी तरीके से एहतसाब से बचा जाए। पीपल्स पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि सही मानों में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रही है। वर्कर्स रेडी हैं कि हम किसी भी किस्म के अपने डेमोन्स्ट्रेशन का हक रखते हैं और हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं। चेयरमैन FBI शबर जैदी ने टैक्स निज़ाम को नाकाबिले अमल करार देते हुए मौजूदा टैक्स निज़ाम को मुल्की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा निज़ाम आने वाली नस्लों के लिए पायदार नहीं है। हकीकी आमदनी के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि मुल्क में बड़े पैमाने पर गैर टैक्स शुदा दौलत जमा हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि बजट से कुछ दिन पहले नए चेयरमैन FBI ने टैक्स सिस्टम पर खतरे की घंटी बजा दी। अपनी कारकर्दगी दिखाने के बजाय वो सिस्टम को इल्जाम दे रहे हैं, कहीं वो राह फरार तो इख्तियार नहीं कर रहे।